Good morning, my dear students. So, welcome to our online class of physics of class 9th. As you all know, we are discussing the first chapter of the physics of class 9, that is motion. And in that, till now, we discussed a lot of things. I think in the last class, we had discussed more and more about the graphical representation of motion. So, now today, in our today's session, we have to start a new topic, that is equation of motion and its derivation by graphical method. So I had written the topic as equation of motion by graphical method. So first we will talk about the equation of motion, and then we'll see its derivation using the graphical method. You can derive it analytically also, but that right in this today's session I'm not going to discuss that thing. Also in the next session we are going to discuss that thing also. But right now the graphical method which is given in your NCERT syllabus, so I'm just moving according to that. Okay, so let's start. So let us talk something about first about the equation of motion, and then we'll move on for the derivation. So here it goes, equation of motion. So there are three equations of motion we have to study in this chapter. So first of all we should know the scenario and the initial condition about the object, so that we can get the equations of motions. So I'm writing, when an object moves along a straight line with uniform acceleration. So an object must move along a straight line with uniform acceleration. It is possible to relate its velocity, acceleration and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as equation of motion. I hope so this must be clear to you all, that whenever an object is in motion, and especially the case which we have to study in our class is that it should move along a straight line and in uniform acceleration. It means basically we have to consider about the uniformly accelerated motion. Okay, so in that motion we can just get a relation between its velocity, acceleration and distance covered in a certain interval of time. We can just have some equations, some relation in these quantities. So that only is going to be called as the equations of motion. So let us move on and keep on just searching or just seeing about this. So just I'm going to write that three equations of motions which we have to study in this chapter are, the three equations of motions are V equals to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, V square is equal to U square plus 2AS. Okay, so I hope so that I should be a bit bilingual too, because many of the students are unable to understand the whole thing. So I'm trying to be converse in Hindi too. So ये हमारे तीन equations of motion हैं. V equals to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square and V square is equal to U square plus 2AS. This you can also write, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, V square minus U square is equal to 2AS. ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं. तो हम लोगों ने जो क्वांटिटीज़ यहाँ पर यूज़ किया, जो सिंबल्स यूज़ किया, उसका जो मीनिंग एक्चुअली है वो क्या है, वो मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने. U जो हमने यूज़ किया यहाँ पर देखिए, उसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी. V जो है स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, A stands for acceleration, S stands for displacement, T stands for time. Okay, I hope so you people must understand this thing. तो ये तीन इक्वेशंस को तो आपको रट जाना है एकदम, इधर को इसको याद करके रख लो एकदम सब लोग. चलो अब इसका हम लोग आगे डेरिवेशंस देखते हैं, और पहले इसके स्टेटमेंट्स के बारे में समझते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, ये किस किस चीज़ के बीच में रिलेशन है. तो इधर देखो, ये हमने तीन पॉइंट्स बना रखा है इधर. इक्वेशन फर्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम. आप इधर देखो, फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम. सो वी हैव टू इग्नोर दिस a because a is a constant. Okay, so that's why it is a relation between v and t. So v is the variable, it means velocity, v and u is the variable and t is the variable over here. Okay, now equation second is the relation between position and time. इधर देखो, इक्वेशन सेकेंड जो इधर है, पोजीशन, एस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते और पोजीशन नहीं बोल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर पोजीशन कॉल कर रहे हैं उसको. ठीक है, पोजीशन एंड टाइम, इधर है टाइम.
आप यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो हमारे पास दो वेरिएबल क्वांटिटीज हो जाएगी, एक एस और एक टी। मतलब जैसे हम लोग के पास ये लीनियर इक्वेशंस या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होता है और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होता है, उसी तरह का रिलेशन है यहाँ पर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका, क्योंकि इस पर पावर स्क्वायर है। तो आपका ये दो चीज़ों के बीच में रिलेशन है, एक एस और एक टी, इसका मतलब पोजीशन एंड टाइम। आइए आगे देखते हैं। इक्वेशन थर्ड इज द रिलेशन बिटवीन पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो इधर मैंने हम लिख दिया, इधर ये आपका डिस्प्लेसमेंट भी है। तो ये देखिए इधर क्या था हमारा, पोजीशन एंड वेलोसिटी। आपने वेलोसिटी देख रहा है इधर दिख रहा है आपको, और ये आपका पोजीशन हो गया। फिर ये एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की कांस्टेंट वैल्यू हमने यहाँ पर ले रखी है, ये हमने पहले ही मेंशन कर रखा है, ओके। अब हम लोग मूव करेंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन फॉर द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस ग्राफिकली। अब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ग्राफिकली डेराइव करने की कोशिश करेंगे। तो फिर हमारा सिचुएशन, इनिशियल कंडीशंस हमको पहले डिफाइन करना है, ठीक है। इनिशियल कंडीशंस को हम लोग को लेना है पहले। आप ऐसे ही कुछ भी निकाल ही ना सकते हो जब तक कि आपको पता नहीं होना चाहिए बॉडी मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, यू वी एक्सेलरेशन उसका मेंशन करना पड़ेगा, टाइम इंटरवल मेंशन करना पड़ेगा, एस को डिस्प्लेसमेंट पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन with initial velocity u and attain a final velocity v in time interval t as shown in figure। तो हमने फिगर में एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रखा है, जिसकी मदद से हम लोग तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे। आप इधर देखिए, हमने माना बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है और उसकी एक्सेलरेशन को हम लोग ए अज्यूम कर लेंगे, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को हमने यू और वी अज्यूम किया। और ये वेलोसिटी जो यू सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जो अटेंड करता है वो टी टाइम में अटेंड करता है। आगे चलते हैं हम लोग। इधर देखिए, अब हम लोग मूव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में बेसिकली हम लोग एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से चलते हैं। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हम लोग को क्या पता होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं जो मैंने आपको बता रखा था, लेकिन वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया नहीं है ताकि आप कन्फ्यूजन नहीं हो आपको स्लोप के बारे में, क्योंकि स्लोप हमारा जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो एक्सेलरेशन देता है। तो अब अगर आप यहाँ पर एक एंगल को अज्यूम कर लोगे थीटा, तो इस एंगल के लिए अगर आप थीटा को मैं बोलूँगा इसका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालो, तो वो तो tan थीटा हो जाता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आप लोग को बताया। तो अगर स्लोप से भी जानना चाहोगे तो स्लोप इसका एक्सेलरेशन देता है। तो हम लोग यहाँ बेसिकली ये जो निकाल रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो जो निकाल रहे हैं, ये आपका स्लोप भी है, चूँकि tan थीटा ये है। और अगर आपको उससे नहीं चलना तो डायरेक्टली सिंपली आप चलिए मोशन के एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो वही मैंने ले रखा है ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पर ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू, इसको हम लोगों ने डिनोट कर रखा है यहाँ पर bc से, और टाइम आपका दिख रहा है यहाँ पर t टाइम इंटरवल है, हमने उसको रिप्लेस कर दिया इधर वैल्यू को, और v माइनस यू बाई टी हमें अप्लाइन हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको शफल करेंगे, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव कर लिया। चलिए अब इसको हम लोग अपने दिमाग में रखते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ और यहाँ से याद रखिए, अब आप you can just change the values and find out different values of different quantities। like अगर आपको इस इक्वेशन से मैं बोलूँगा कि t का वैल्यू निकालो, तो t इधर जाएगा, a नीचे आ जाएगा, तो v माइनस यू बाई ए। इसको हम लोग अभी यूज़ करेंगे आगे वाले इक्वेशंस में, ठीक है। और आप ए टी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो v माइनस यू, या v माइनस यू की वैल्यू आपको निकालनी है तो ए टी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फास्ट थोड़ा मूव करते जल्दी फास्टली। इक्वेशंस फॉर पोजीशन एंड टाइम। सो अब पोजीशन और टाइम के लिए हम लोग को निकालना है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारा एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ एड स्क्वायर। हमने यहाँ पर पहले कुछ कंडीशंस लिया है। लेट अस कंसीडर दैट द ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रेवल्ड a distance s in time t under uniform acceleration a, okay। as we know the distance traveled by the object can be obtained by the एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोगों ने ये चीज़ पहले पढ़ रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख रहा है हमें, इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा ये है, देखिए ए बी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसके अंडर जो एरिया आया, तो इसके अंडर कौन एरिया आया पूरा, ये देखिए ये पूरा
ये पूरा एरिया उसके अंडर आ गया। तो उसको हम लोगों ने एक पॉलीगन बना रखा है। देखिए अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ABCDO ये एक ट्रेपेजियम शेप है, जिसमें देखिए ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और ये देखिए ये साइड और ये साइड नॉन पैरेलल है। तो हम लोगों ने ये जान रखा है पहले कि ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल साइड्स होता है अपोजिट साइड्स, और 2 अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल होता है। तो ये हमारा जो फिगर है ये ट्रेपेजियम शेप का बन रहा है। तो आप ट्रेपेजियम का आप एरिया 2 तरह से निकाल सकते हो। देखो एक एरिया आप निकाल सकते हो इसका डायरेक्टली पूरा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट करके निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला आप इसका ऑब्टेन कर सकते हो, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ACDO या OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दोनों को जोड़ोगे तो आपको ट्रेपेजियम का एरिया मिलेगा। तो एक बार में हम लोग इस मेथड को, सेकंड वाला मेथड मतलब कि रेक्टेंगल और ट्राइंगल के एरिया को जोड़ करके निकालेंगे ट्रेपेजियम का एरिया, एंड द सेकंड केस वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम यूजिंग इट्स फार्मूला, इसके फार्मूला को यूज करके निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABCD, आपको मैंने यहाँ दिखा रखा है। अब फटाफट हम लोग चलते हैं आगे जल्दी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो मैंने वहाँ पर डिस्कस कर रखा था आपसे। अब देखिए रेक्टेंगल का एरिया आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं OA, ये इसका लेंथ मान लो या फिर ब्रेथ मान लो, जो मानना मान सकते हो, ब्रेथ मान लो, और मल्टीप्लाइड बाई OD, यहाँ देखो OD, तो OD लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, तो वो हमने यहाँ पे कर रखा 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल बेस AC, हाइट हो गया आपका, ये देखो ये हो गया हाइट BC, ठीक है। आइए चलिए हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यूज़। अब देखिए OA इंटू OD, उसकी जगह पर OA की वैल्यू U आ गई, OD की वैल्यू T आ गई। अगर आप यहाँ देखेंगे OA की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक U है, और OD की वैल्यू हमारी T है, T यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर। और देखिए AC और BC की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है, AC जो है आपका OD के ही इक्वल है, तो इसकी भी वैल्यू T हो गई। BC की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पर लिख रखी है, वो है V माइनस U। इन सारी वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमें ऑब्टेन हो जाएगा। अब देखिए ये V माइनस यू जो आपको इधर आया, इस V माइनस यू को हम लोग रिप्लेस करेंगे, जो मैंने पहले बताया था इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो V माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो V माइनस यू की जगह पर हम लोग 80 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए ये हमने यहाँ पर 80 को सब्स्टिट्यूट किया। अब ये लिख जाएगा UT प्लस हाफ T इंटू 80, ठीक है। तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, UT प्लस T से T मल्टीप्लाई होगा, A सेपरेटली इधर आ जाएगा, तो 1/2 हाफ इंटू 80 स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनली S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर ऑब्टेन हो गया। तो ये सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फटाक से ऑब्टेन कर लिया। अब जल्दी से हम लोग कोशिश करेंगे, नाउ लेट अस फास्टली ट्राई टू डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके चलिए जल्दी से इसको कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आइए, और ये हम इधर रखते हैं आपको, क्योंकि रेफरेंस हम लोग को लेना होगा अपने ग्राफ से, ग्राफ की मदद हम लोग ज़रूरी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो इक्वेशन फॉर पोजीशन एंड वेलोसिटी। पोजीशन आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी, लेट अस अगेन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय फाइंडिंग आउट द एरिया अगेन। अब हम लोग फिर इसके एरिया को निकालते हैं, ट्रेपेजियम के एरिया को। तो हमने पहले बोला था एक बार हम लोग उसको रेक्टेंगल और ट्राइंगल के एरिया का सम करके निकालेंगे, एक बार हम लोग उसका डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे। तो वही अब हम सेकंड केस ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डायरेक्टली निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABCD, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मैंने डिस्कस किया पहले आपसे, OABCD इस ट्रेपेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA हो गया और आपका BD हो गया। OA की वैल्यू U है, BD की वैल्यू आपकी देखिए यहाँ से यहाँ तक V है, तो ये U हो गया, ये V हो गया, और दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OD मतलब T हो गया। ओके चलिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप फटाक से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए जल्दी से। तो S इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, फिगर से मैंने दिखा रखा है आप लोगों को। अब 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो OA और BD की वैल्यू मैंने बता रखी है वहाँ पर से, U प्लस V, और इधर से OD की वैल्यू हो गई आपकी T। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैंने बोला था T की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग वहाँ से, तो हम लोगों ने T की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इधर सब्स्टिट्यूट कर रखी है, V माइनस यू डिवाइडेड बाई A। तो अब ये हम लोग इधर से देखिए, इसे ये चीज़ हमें ऑब्टेन हो गया, V माइनस यू बाई A, जो मैंने यहाँ पर रखा है, लिख रखा है पहले से ही, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट T इज इक्वल टू V माइनस यू बाई A, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके सो दैट यू विल डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। अभी देखिए U V प्लस यू और V माइनस यू दोनों को ऊपर मल्टीपल के फॉर्म में रख दीजिए, न्यूमरेटर में 2 और A को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर में रख दीजिए। अब V माइनस V प्लस यू इंटू V माइनस यू आपको याद होगा, तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एक आइडेंटिटीज हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ रखा है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से। अब देखिए ये 2a नीचे डिनोमिनेटर में है, s है हमारा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको 2a को इससे s से, ये 2a s हो गया, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो फार्मूला हमारा आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया। तो आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहला है v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा है s इक्वल टू यू प्लस हाफ एट स्क्वायर, और थर्ड वन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आप इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे और इसको आपको डिराइव करना सीखना है। मे बी पॉसिबल आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, तो आज टुडे लेट अस एंड दिस सेशन नाउ, दैट्स इट फॉर टुडे। सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर एंड लिसनिंग टू मी वेरी प्रॉपर्ली एंड कंसंट्रेटिवली। So we'll meet again in the next class. Thank you. See you next class. Take care.